everyone, and welcome back to our series Inspire and Ignite 2.0. I am Samriddhi Shukla from the Training and Placement Department, and today we have a very special guest, Anunay Sharma from the CSE branch 2025 batch at UIT. He has cracked GATE with an amazing All India rank of 118 and has also secured an impressive off-campus package of 27 LPA at JustPick. Sir, welcome. It's great to have you here. Thank you for having me. I'm excited to be here. Anunay sir, to begin with, we'd love to know what initially motivated you to pursue GATE. Initially, from the starting only, मेरा plan GATE करने का ही था. So I was from the starting only motivated towards GATE only. So I started my preparation from second year itself, and later on, being consistent in studies of GATE and placement also, I cracked GATE with an AIR of 180. Great, sir. Like जब ऐसे आपने initially start किया, तो what were the challenges you faced or self-doubt? How did you overcome those? So in the starting, after seeing the syllabus, that's what the main thing. It was like the syllabus was very vast. So यही सोच रहा था कैसे complete होगा in बहुत कम time में. So but being consistent and solving questions step by step subjects complete करता गया, and at last it went through like अच्छा होगा. Sir, as you know, most of the students struggle to juggle work commitments and college together. So how did you manage that? With college, I was like कि I have to maintain a balance. तो with college studies, मैं self study के लिए अलग से time नहीं helped me a lot क्योंकि self study बहुत important है GATE के लिए. So yeah. Sir, as you know, market में बहुत सारे resources available हैं for GATE preparations. So how did you prioritize for what was your primary study material? My primary study material was कि I maintained I concentrated only a specific resource only. मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं गया for कि मुझे ये भी resource दे दो वो भी दे दो मेरे को और preparation करनी है नहीं. I stick to one resource only जो कि I maintained my own notes. So based on that only अगर लगता था कि थोड़ा और इसमें advancements चाहिए इन topics पे थोड़ी और clarity चाहिए concepts पे तो मैं देखता था नहीं तो I stick to one specific note. Sir, specifically for GATE CSE, what was your weakest subject? Weakest subject, it was algorithms क्योंकि वो अलग से subject है. So उसको master करने के लिए I revised it for about 7 to 8 times. तो related है data structure से तो उसमें complexities and all codes की तो वो सब करने में थोड़ा time लगा लेकिन yeah at the end I was able to go through the पूरा subject और अच्छे से हो गया. How did you tackle your weakest subject? Tackle ऐसे ही किया कि हर रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाई मैंने उसके लिए क्योंकि मैं उसको भूल जाता था कि किसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होंगी कौन से एल्गोरिथम्स कैसे काम करेंगी. तो बेसिकली मैं क्या करता था कि एक महीने में कम से कम 2 बार का रिवीजन करता था एंड आई स्टार्टेड इट फ्रॉम सितंबर. एल्गोरिथम को सितंबर में 2 बार अक्टूबर में 2 बार ऐसे रिवाइज किया ताकि मेरे को चीज़ें ज़्यादा समझ में आए क्लैरिटी के साथ कि एल्गोरिथम्स बेसिकली काम कैसे कर रही हैं अच्छे से तो कब उनको इम्प्लीमेंट करना है कहाँ उनको इम्प्लीमेंट करना है ये सब फिगर आउट करते करते अच्छे से वो पूरा हो गया और एट द एंड आई वाज एबल टू मास्टर दैट सब्जेक्ट. So what was your systematic approach for revision? Systematic approach, I revised मिनिमम रिवीजन मैंने एक सब्जेक्ट का 5 टाइम्स किया एंड मैक्स टू मैक्स एल्गोरिथम्स में मेरे को बहुत रिवीजन्स लगे. सो स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि आई कंप्लीटेड माई पूरा सिलेबस टिल अक्टूबर. नवंबर दिसंबर जनवरी व 3 months जब मैंने पूरा रिवीजन्स के लिए लेके रखा था क्योंकि आई न्यू कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस ठीक है सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन रिवीजन्स आर द मेन फैक्टर जो आपको करना चाहिए नहीं कि उसके बिना आप चीज़ें भूलते जाते हो. तो व्हाट आई डिड वाज कि पहली टाइम जब मैंने कोई सब्जेक्ट का रिवीजन किया तो इट टुक मी अबाउट 7 to 8 days. फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम टुक मी 5 days. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर जो एक सब्जेक्ट है वो मेरे को कम से कम 10 दिन में हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन आई स्टार्टेड द रिवीजन अगेन फॉर दैट सब्जेक्ट वो मुझे 6 to 7 days में हुआ. एट द एंड जब मैं रिवीजन करता गया तो वो मेरे को 1-2 दिन में विद क्वेश्चंस होने लग गए. तो उस जर्नी के लिए मेरे को 10 to 11 days इन्वेस्ट करने पड़े स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तब आनी चाहिए थी. As you know, everyone says solve PYQs. So how did you analyze कि कौन सा PYQ कब करना है कितने टाइम में करना है? So PYQs का ऐसा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द गेट
बिकॉज दे विल गिव यू अ रफ आइडिया कि किस सब्जेक्ट से मतलब किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो एनालाइजिंग दैट पैटर्न वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो वेन एवर आई यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टॉपिक, मैं उसके पीवाई क्यूज पे चले जाता था. आफ्टर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस जो बेसिक वर्कबुक्स के थे, तो मैं पीवाई क्यूज पे चले जाता था. फिगरिंग आउट कि पीवाई क्यूज के पैटर्न कैसे हैं, मैं अगेन टॉपिक्स पे वापस आता था कि भाई इस टॉपिक पे द गेट एग्जाम इज फोकस्ड मोर, मतलब इस टॉपिक पे ज़्यादातर फोकस है कि इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो वन द सेकंड टाइम आई एम रिवाइजिंग, आई विल फोकस मोर ऑन दोज टॉपिक्स जहाँ पे गेट की पीवाई क्यू ज़्यादा हाईलाइटेड है. तो मैंने लास्ट के 2 साल के लाइक फॉर 24 एंड 23 और 23 एंड 24 का गेट मैंने उसके पीवाई क्यूज नहीं किए थे. मैंने उनके फुल लेंथ बचा के रखे थे कि मैं उनके पीवाई क्यूज अभी नहीं करूंगा, फुल लेंथ के बाद करूंगा. मैं लोगों को एज अ फुल लेंथ टेस्ट दूंगा ताकि मेरा रिवीजन हो जाए या मेरे को पता चले मेरा लेवल क्या है पिछले 2 साल के गेट के लेवल के हिसाब से. Based on your experience, what do you think are the most common struggles GATE aspirants usually face? इट्स अबाउट सिलेबस ओनली. स्टार्टिंग में ही लोग देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड पूरे 11 सब्जेक्ट्स, वो भी बहुत डिटेल में कॉम्प्लेक्स. गेट इज ईजी बट नॉट सिंपल. सो इफ़ यू कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो एंड यू हैव सॉल्व द पीवाई क्यूज एज वेल एज वर्कबुक, तो आप गेट में अच्छी रैंक ले आओगे. डेट्स व्हाट आई फील. लेकिन लोग फंस कहाँ जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द प्रेशर की सिलेबस बहुत ज़्यादा है. तो अब मतलब मैनी गेट एस्पिरेंट्स व्हाट दे डू इज कि वो उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि वो प्रेशर में रहते कि मेरा गेट सिलेबस नहीं हुआ, हाउ विल आई रिवाइज. तो स्ट्रैटेजी या प्लानिंग यहाँ पे मेन फैक्टर वर्क कर जाती है. So, what was your strategy for taking mock test? फॉर मॉक टेस्ट व्हाट आई फॉलोड इज कि द लास्ट 1 month और 2 months मैंने मॉक टेस्ट के पैटर्न मतलब जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो देना स्टार्ट कर दिया था. आई सेव द फुल लेंथ फॉर द लास्ट. तो सब्जेक्ट वाइज जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब मैं अगली बार फॉर द फाइनल रिवीजन में जा रहा हूँ, तब मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देता था कि अब मुझे मॉक टेस्ट देना है कि अब मेरे को पीवाई क्यूज हो चुके हैं, वर्कबुक्स हो चुके हैं, तो मैं मॉक्स में देखूंगा सब्जेक्ट वाइज कि मेरा क्या किस लेवल पे आ रहा हूँ. तो मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिकॉज फ्रॉम द मॉक टेस्ट यू विल रियलाइज कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स वीक हैं. फ्रॉम द पीवाई क्यूज ऑल्सो, वर्कबुक्स ऑल्सो यू कैन, बट फ्रॉम द मॉक टेस्ट यू विल गेट अ रियल टाइम कि मेरा सब प्रिपरेशन हो चुका है, अब क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देन यू विल फिगर आउट ना, तब तुम ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी के साथ फिर आगे बढ़ सकते हो. What was your most unusual or counter-intuitive method to avoid distractions like social media हो गया, boredom या family का pressure? क्या करते थे आप? मैं मतलब आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ चेस. तो एंड आई वॉज ऑल्सो गोइंग आउट विद फ्रेंड्स समटाइम्स, टेकिंग ब्रेक इन 10 to 15 days. लेकिन ये नहीं कि आफ्टर थोड़ा सा अच्छे से कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद व्हेन आई थिंक कि अब थोड़ा सा एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स या चेस खेल लेता था. फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, सो देयर वॉज नॉट सच प्रेशर फ्रॉम द फैमिली बिकॉज वॉट दे थॉट कि जितना लाइट इसको मेंटली रखेंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है. Can you walk us through your typical daily schedule or weekly schedule? Like, सो ये पक्का था कि आई विल सॉल्व 1 coding क्वेश्चन डेली. विद दैट आई हैव टू डू सब्जेक्ट्स ऑफ गेट, जो कि मैं प्लान करता था कि मुझे कैसे करने एक वीक में 3 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स के क्या क्या करना है, या एक सब्जेक्ट का ही पूरा रिवीजन करना है उस वीक में. तो ऐसे में हर संडे या कोई स्पेसिफिक डे पे अगले 1 week का टाइम टेबल लिख के रखता था. तो उसके साथ साथ मैं पर डे का भी टाइम टेबल लिख के रखता था कि मुझे इस दिन पे क्या करना है विद टाइम ड्यूरेशन. सो इट्स नॉट लाइक कि मैं उसको पूरा तरह फॉलो करता था, लेकिन ये रहता था कि मैं थोड़ा सा मेंटली रहेगा कि यू डोंट हैव मतलब तुमको बाहर नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो समवेयर एल्स, तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुमको वहीं पे रहना है. सो मेंटली पे थोड़ा रहता था, तो ताकि मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंप्लीट कर लेता था फिर उस टाइम. if you could go back in time, the very beginning of your GATE preparation journey, knowing everything you know right now, what's one fundamental thing you would do completely different? सो इट विल बी कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मैं किसी सब्जेक्ट्स पे लगा रहा हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारा टाइम वेस्ट भी हो रहा है उस चीज़ में. तो थोड़ी और प्लानिंग बेटर हो सकती थी फ्रॉम द स्टार्टिंग ही. लाइक इन द इनिशियल यू मतलब मोस्टली वो फोकस ऑन द गेट एग्जाम जब वो बहुत पास आने वाला होता है, तभी बहुत सारी प्लानिंग्स वगैरह बनती हैं. तो अगर तुम स्टार्टिंग से करोगे तो बहुत अच्छी रैंक और आ सकती है. When did you actually start your GATE journey? Actually, I started in 3rd year
एंड मतलब मिड ऑफ थर्ड ईयर। तो तब विदाउट लाइक मच प्रिपरेशन एंड थोड़े से कम सब्जेक्ट्स भी किए थे मैंने, तो मैंने थर्ड ईयर में गेट दिया था। तो उसमें मेरी 2100 AIR आई थी। तो AIR 2100 आई वॉज ओके कि आई हैव वन मोर ईयर, I can try, and with full completion of subjects and syllabus, I will be able to crack with good rank. This is what I believed in myself, and this is what happened. ग्रेट। एज वी नो कि आपने गेट के साथ साथ प्लेसमेंट भी क्रैक की है, सो व्हाट डू यू थिंक कि डेव और डीएसए किस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए? See, both the things are important. DSA will help you clear the initial rounds. Dev will help you in your interviews. So both the things are important according to me. If you are good in DSA, you will be able to reach the interview. If you are good in Dev, you will be able to crack the interview. This is the fundamental, I believe. While preparing for GATE, did you feel that it is also helping you to prepare for your placements? So basically कोडिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, कोडिंग में जो अपन करते हैं C++, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, ये चीज़ें गेट में भी थी। तो मुझे गेट के डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस जो थे वो इजीली बन रहे थे, क्योंकि मैं कोडिंग में मेरे को प्रैक्टिस थी। सिमिलरली जो गेट के सिलेबस में थी चीज़ें, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ये सब चीज़ें अपने कोडिंग के इंटरव्यूज में पूछ रहे थे। तो when you are going for an interview, they were asking the core fundamental subjects. So I was having a very much clarity about the subject, so I was able to crack the placements also. Your final message to someone who feels they are not smart enough for GATE? It's like कि you just have to believe कि you will be able to crack GATE. If you think the syllabus is very vast, and if you're thinking that you will not able to complete it on time, revisions का time नहीं मिलेगा, फिर mock test कब लगाएंगे, इसकी अगर एक strategy follow करेंगे अपन, तो if you follow a proper strategy, like at what time should I complete the syllabus, at what time should I start revising the syllabus, at what time should I start giving the mock test. So this is the thing जो कि बहुत ज़्यादा important है। अगर ये if you figure it out कि तुम्हें कब कैसे क्या प्लान करना है अच्छे से, you will be able to crack GATE अच्छे से। मतलब according to me इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं आएगी if you have a proper plan for GATE. आपने अपने लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन में कैसे प्लान किया सब कुछ? लाइक फॉर एग्जांपल आपका गेट 1 Feb को था, तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? हाँ, for that 1 month I was completely cut off from everything. So स्ट्रैटेजी बेसिकली यही थी कि मेरा एडमिट कार्ड आ गया था 10th January के आसपास, एंड आई गॉट टू नो कि मेरी शिफ्ट जो है मॉर्निंग शिफ्ट। सो व्हाट आई टोल्ड मेरे घर पे कि डोंट गिव मी फूड फ्रॉम 9:30 to 12:30 बिकॉज वो भूख लगेगी एग्जाम में फिर। So this is what I avoided. I used to give a mock test from 9:30 to 12:30 every day till 30th of January. 31st को I was relaxing till 30th of January, 9:30 to 12:30. This is the one thing I was following each and every day from 10 to 30th कि 9:30 to 12:30 मुझे mock test देना है। अब उस मतलब लास्ट एक महीने में शेड्यूल ऐसा ही था कि mock test के बाद I was एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट, मेरे कितने मार्क्स है, वेयर आई मतलब डिड द मिस्टेक्स। मैं करेक्ट क्वेश्चंस नहीं गिनता था, फिर मैं रॉन्ग क्वेश्चंस गिनता था कितने हो गए। आई मेंटेन्ड अ शीट, अ पेपर, जिसमें मेरे सारे आई गिवन 30 to 40 मॉक टेस्ट, उसके पूरे स्कोर, कितने रॉन्ग, कितने नॉट अटेम्प्टेड, और क्या ऑल इंडिया रैंक थी उस पेपर में जो मॉक थी उसमें। सो दिस इज व्हाट आई मेंटेन्ड, एंड व्हेन आई वेंट थ्रू दैट पेपर एट द लास्ट ऑन 31st, आई रियलाइज्ड कि स्टार्टिंग में मेरे 10 to 15 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, अब मेरे 4 to 5 गलत हो रहे हैं। So this is what mock test and test series will give you. They will improve कि तुम कितना गलतियां कर रहे हो, ये नहीं कि कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, मतलब they will only improve you. आखिरी मंथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई यूज्ड टू मेंटेन कि एक दिन में एक मॉक टेस्ट तो हो फुल लेंथ, प्लस सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो आई यूज्ड टू गिव, जो मैंने बचा के रखे थे ऑन द टेस्ट सीरीज, सो दैट अगर सब्जेक्ट्स में कहीं डाउट आ रहा है एक बार और फाइनली, मतलब आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क एट लास्ट कि सब्जेक्ट्स में अगर कुछ भी टॉपिक छूट रहा है तो मेरे को टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। अब मेरे को PYQs वगैरह मैंने कर लिए हैं, तो मेरे को मोस्टली टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। तो दैट्स व्हाट वन थिंग जो मैं कर रहा था, तो मेनली 9:30 to 12:30 वाला चीज़ ही थी। हाउ डिड यू हैंडल एग्जाम डे प्रेशर? ऑन द एग्जाम डे आई वॉज प्रिटी रिलैक्स्ड बिकॉज मेरे घर पे माई मदर एंड फादर टोल्ड कि गिव इट एकदम अच्छे से, शांति से, देयर इज नो प्रेशर, और मतलब जस्ट डोंट वरी अबाउट द आउटकम, रिजल्ट क्या रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है कि दे ऑन द डे ऑफ एग्जाम दे आर वरिंग अबाउट द रिजल्ट,
दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज, तो इस चीज पे मैं क्लियर था कि आई वॉज लिविंग इन द मोमेंट, मेरे को अपने प्रिपरेशन पे भरोसा था, व्हाट आई डिड। एंड जो मॉक टेस्ट वाली, जो मेरा 9:30-12 का शेड्यूल था, दैट्स द सेम थिंग दैट हैपेंड इन द गेट एग्जाम। आई वाज लाइक कि मैं एक मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगता कि मैं अपने घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहा हूँ विद अ कॉपी पेन। सो या, एट द ऑन द एग्जाम डे आई वाज नॉर्मल। So, your hashtag one piece of advice for an aspiring student. वन पीस ऑफ एडवाइस कि बिलीव इन योर सेल्फ, सब हो जाएगा इफ यू बिलीव विद अ प्रॉपर प्लान। एंड इफ यू डोंट टेक प्रेशर एंड वर्क, मतलब बिना प्रेशर के आप वर्क करोगे अपनी चीजों पे, तो वो सारी अच्छे से हो ही जाएंगी, मतलब अभी नहीं तो बाद में, लेकिन इट विल टेक टाइम, इट मे टेक टाइम, बट इट डिपेंड्स कि हाउ बेटर इज योर प्लान। इफ यू आर मेकिंग अ गुड प्लान, फॉलोइंग इट, तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हेल्प करेगा करियर में। Thank you so much, Anunay sir, for these incredibly valuable insights. We wish you all the best for your future endeavors. And to all our viewers, keep learning, keep inspiring, and keep growing.